السلام علیکم، بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے آج اس موضوع پہ بات کرنی ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہم پر کون سی ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی ہے، ہم نے اس کی پہچان کرنی ہے، اور ہم نے اس کے متعلق یہ سوچنا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کے ذریعے کتنا بڑا احسان ہے۔ میں حافظ بلال ہوں، آپ HMBD اسلامک چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، اور کوئی بھی آپ کا اسلامی سوال ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر جتنا زمین کے اندر پانی ہے یہ پانی سیاہی بن جائے، اور جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں، پانی ختم ہو جائے سیاہی کے طور پر اور کلمیں ٹوٹ جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہ ہوں، اگر ان کی مثل 7 گنا اور بھی ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑی نعمتیں کی ہیں۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، گھر بار دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم و اعضاء دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس لینے کے لیے پھول اور پودے بنائے ہیں، آکسیجن کے لیے اور کھانے کے لیے، پینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، رات دن، چاند ستارے، سورج اور پھول اور زمین آسمان، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں۔ تو ان سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ویسے تو اللہ کے رسول نے 5 چیزوں کے حوالے سے خاص طور پر فرمایا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اغتنم خمسا قبل الخمس صحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنے دولت کو اپنی دولت اور مال کو اپنی فقیری سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنے فارغ وقت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، صحت اور فارغ وقت یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، اور ہم ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدہ دیا ہے، جگر، دماغ، ہر چیز دی ہے، تو ہم ان چیزوں کی قدر نہیں کر سکتے، ہم ان کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ چھوٹی سی مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اندازہ کروانے کی غرض سے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین کے تحت ایک کتاب لکھی ہے خطبات کی صورت میں، جناب شیخ الحدیث شیخ عبد الرحمن ضیاء حافظہ اللہ تعالی جنگ والے، ان کی اس کتاب کے اندر میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ ایک غیر مسلم ملک کے اندر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، انہوں نے اخبار کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ اس بندے کو یہ بیماری تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں کی یہ جو جھپک ہے نا وہ نہیں کر سکتا تھا، اس طرح آنکھوں کو بند کرنا اور کھولنا وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر طاقت نہیں تھی، تو یہ چیز ان کی گری ہوئی تھی، اور وہ مجبور تھا کہ اپنی مرضی کے ساتھ اس طرح آنکھوں کو کھول نہیں سکتا تھا اور بند نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی سلیس ٹیپ ہوتی تھی، وہ اس کی آنکھوں کو اس کے ساتھ کھولا جاتا تھا اور پھر اتار کر اس کی آنکھوں کو بند کیا جاتا تھا۔ تو اتنا دولت مند وہ انسان تھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی ساری دولت اگر لگا دی جائے کسی کام میں تو آپ کو وہ چیز مل جائے، مطلب کہ آپ کو وہ ساری دولت دے کر کوئی ایسی چیز ہو جو حاصل کرنی پڑے، تو کون سی چیز ہے جو آپ ساری دولت دے کر بھی حاصل کرنا پسند کریں گے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میری ساری دولت لگ جائے اور میں صرف اتنا ایک مرتبہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے آنکھ کو کھولوں اور اپنی مرضی کے ساتھ آنکھ کو بند کروں۔ تو یہ
अल्लाह ताला ने हम पर कितने बड़े इनामात किए हैं। अल्लाह अकबर। ये जो बीमार हैं उनसे पूछिए, ये हमें पता है कि बीमारी से बड़ी कोई नेमत यानी बीमारी से बड़ी कोई आजमाइश नहीं है, तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं है। लोग कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह और उसके रसूल का मिल जाना ये भी बहुत बड़ी नेमत है, कुरान का मिल जाना ये भी बहुत बड़ी नेमत है, ये ईमान मिल जाना ये भी बहुत बड़ी नेमत है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमतों से बड़ी नेमत है। इन सब नेमतों के बावजूद मैं एक ऐसी नेमत की बात करना चाहता हूँ जो नेमत तंदुरुस्ती से भी बड़ी नेमत है। आप इस बात को माने या ना माने, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन शेख हाफिज़ अब्दुल सलाम बुटवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब अपनी तफसीर कुरानुल करीम के अंदर जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र है, सूरह इब्राहीम के अंदर जो उन्होंने दुआ की थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की सरज़मीन पर छोड़कर जा रहे थे, फरमाया था, उन्होंने दुआ की थी कि ऐ मेरे रब, मेरे इस जहाँ मैं अपने बेटे को छोड़ के जा रहा हूँ इस शहर को अमन वाला बनाना। तो अमन बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने कुरैश मक्का को भी अमन के हवाले से नेमत उन पर एहसान जतलाया है। फरमाया लीलाफी कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें खौफ से अमन दिया है। तो आज हम इस अमन की कितनी कदर करते हैं। खौफ से अगर अल्लाह ने हमें बचाया है तो अमन अल्लाह ने हमें दिया है, तो हम अमन की कितनी कदर करते हैं, कितनी बड़ी नेमत है। इस पर उन्होंने मिसाल पेश की है कि अमन बहुत बड़ी नेमत है। कितनी बड़ी नेमत है कि इमाम राज़ी ने इसकी मिसाल इस तरह पेश की है कि किसी ने किसी से पूछा कि अगर आपको दो चीज़ों में से एक का इंतखाब करना पड़े तो आप कौन सी चीज़ का इंतखाब करेंगे। एक है बीमारी और दूसरा है खौफ। खौफ आप अपने ऊपर मुसल्लत करवाना पसंद करेंगे या बीमारी अपने ऊपर मुसल्लत करवाना पसंद करेंगे। ये मिसाल उन्होंने सूरह इब्राहीम के अंदर जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र है कि अल्लाह इस घर को अमन वाला बनाना, इस शहर को अमन वाला बनाना। तो हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने इसकी इस तरह मिसाल पेश की है कि किसी बंदे से पूछा गया कि आप खौफ को लेना पसंद करेंगे या बीमारी को लेना पसंद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इन दो में से बीमारी को लेना पसंद करूँगा। किस तरह कि एक बकरी हो जिसकी टांग टूटी हो या वो बीमार हो, तो वो एक जगह पे उसको बिठाया हुआ हो, बांधा हुआ हो, या वैसे उसको एक जगह पे रखा हुआ हो, तो उसको आप चारा डालेंगे, उसका दिल करेगा चारा खा लेगी, उसका दिल करेगा चारा छोड़ देगी, उसका दिल करेगा वो बैठ जाएगी, उसका दिल चाहेगा वो चल फिरेगी और खड़ी हो जाएगी। जैसे उसका दिल होगा वो ऐसे करती रहेगी। अगर आप एक तंदुरुस्त बकरी के सामने भेड़िया छोड़ दें, शेर छोड़ दें, कुत्ता छोड़ दें, तो वो हर वक्त डरती रहेगी कि पता नहीं कब मुझे ये भेड़िया खा जाए। तो इसलिए अमन जो है ये तंदुरुस्ती से, सेहत से भी बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला ने हमें अमन दिया है। हम मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं और हमारे लिए अमन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ, जिन इलाकों में, हमारे पाकिस्तान के इलाकों में दुश्मनों ने बदअमनी फैलाई हुई है, अल्लाह ताला उनको नाकाम करे और हमारे जो दिफाई इदारे हैं अल्लाह ताला उनकी मदद करे। और यहाँ पर मैं पाक फ़ौज को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ
जिन्होंने हमारे लिए अमन को बरकरार रखा है। हमारे दुश्मन हम तक नहीं पहुंच सकते, हमारे माल तक नहीं पहुंच सकते, हमारी जानों तक नहीं पहुंच सकते, हमारी इज्जतों तक नहीं पहुंच सकते। मैं सलाम पेश करता हूं अपने उन मुजाहिदों को, उन फ़ौज के सिपा सलारों को, उन फ़ौज के सपूतों को जो अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने अवाम की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। कोई कह सकता है कि आप फ़ौज की तारीफ़ कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह तनकीद भी करते हैं। अगर कोई सरबराह जर्नैल ऐसा गैर कानूनी काम करे तो हम उन पर तनकीद भी करते हैं। लेकिन ये जो जवान हैं, इन्होंने अपनी जवानियाँ, अपने घर बार, हर चीज़ कुर्बान की है वतन की हिफाजत के लिए, अपने अवाम की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए। उनको हम सलाम पेश करते हैं जो हमें अमन में रखते हैं। खुद कहते हैं कि आप सो जाओ, हम तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, हम तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, जिसने इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर एक रात पहरा दिया, उसका वो अमल उसकी निजात के लिए काफ़ी है। तो हमारे जो मुजाहिदीन, हमारे अफवाज के लड़के, बच्चे, फ़ौजी जवान जो अपने वतन की, अपने मुल्क की, अपने अवाम की, दीन इस्लाम का दिफा कर रहे हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। हम उनकी इज़्ज़त और तकरीम करते हैं दिलो जान से। इनको उन चंद गलत लोगों ने बदनाम किया है जो अपने मफाद की खातिर और अपनी जनाब हवस की खातिर कानून को, आइन को तोड़ते हैं और आवाम पर जुल्म सितम करते हैं, जिनको जर्नैल कहते हैं। सारे जर्नैल भी इस तरह की नहीं है, लेकिन हमारे फ़ौज हमारी जान हैं, हमारे वो मान हैं, हमारा वो फ़ख्र हैं, हमारे लिए वो काबिल तकरीम हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जो हमें बहुत बड़ी अमन वाली नेमत दी है, देखें बलोचिस्तान वाला वाक़या कि कितने पंजाबियों को शहीद कर दिया गया, और ये दहशतगर्दी धमाके, ये जो खारजी हैं, तकफीरी हैं, मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारे पाक फ़ौज के लोग इन सब के साथ महाज आराई कर रहे हैं। दुश्मन बैरूनी और अंदरूनी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। इनको हम सलाम पेश करते हैं और पाक फ़ौज के लिए दुआएं किया करें, अपने मुजाहिदीन के लिए दुआएं किया करें। इन्होंने अपनी जानों को कुर्बान करके, अपनी जवानियाँ कुर्बान करके, अपने घर बार को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने कुनबे कबीले बच्चों को छोड़कर वो हमारे मुल्क की दिफा के लिए, हमारी जानों और माल के दिफा के लिए, हमारे ईमान की दिफा और हिफाजत के लिए वो खड़े हुए हैं। दिन रात वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनको दुनिया आखिरत में कामयाब फरमाए, और जिनकी वजह से इन प्यारों को, फ़ौज को तनकीद का निशाना बनना पड़ता है, अल्लाह ताला उन चंद लोगों को भी हिदायत नसीब फरमाए, उनको भी ऐसे गलत काम करने से अल्लाह ताला महफूज फरमाए, और पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। जितने भी पाकिस्तान को आगे देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की खैर फरमाए। और जो पाकिस्तान को गलत फहमी की बुनियाद पर पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं या जानबूझकर नफ़रत करते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए। दीन दुनिया की अल्लाह ताला हम सब को कामयाबियाँ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।